Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. जब मुझे गोवा में कोविड हुआ था तो देयर वाज दिस सीन फोन पे शूट किया था क्योंकि मैं आइसोलेशन में था। किडनैपिंग हो जाती है तो मुझे बांध के रखा जाता है। अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं इस बीमारी को फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। अब भुवन भाम को देख लीजिए। Hello guys, today we have Karanveer Sharma with us and we'll be talking about his upcoming film Thursday. Hello, welcome to India Forums. Thank you for having me. So how have you been and क्या चल रहा है लाइफ में? सबसे पहले तो ये बताओ। बस काम चल रहा है अभी। थोड़ा सा पुशबैक हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस। तो जो भी थोड़ा बहुत हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कीपिंग द होल प्रोटोकॉल्स फॉर कोविड एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन। It's not easy, but we're trying to do what we did last year. Mhm. Before we get talking about your movie, the kind of love fans have been showering on you, शौर्य और अनोखी की जो फैंस हैं, जो every day they are making trends after trends. So कभी फील किया था कि ये शो करने के बाद इतना प्यार मिलने वाला है फैंस का, इतना सपोर्ट मिलने वाला है? सपोर्ट मिला है फैंस का। जो मेरे पिछले भी शो के फैंस थे या उसके पहले भी पिक्चर के फैंस थे, दे ऑलवेज कीप ऑन सपोर्टिंग। नए फैंस जुड़ के आए हैं ऑब्वियसली, जिन्होंने शायद काम देखा हो या शौर्य से जुड़े हैं मेरे साथ, तो उनके लिए भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक यू टू देम फॉर ऑलवेज रिलेंटलेसली सपोर्टिंग बिकॉज आई नो इट्स नॉट इजी removing that kind of time and effort that they put in. So I think the least we can do is be appreciating all their work, just to appreciate everybody's work. And I must say our fans are really, really creative. I see them and I'm like, wow, these guys are like so wonderful with their VMs that they make and all that. So it's really touching, and they really are very, very supportive. And one of the reasons that it's got that kind of a popularity is also because of the engagement that they have, which is sort of very, very, very much there. To be honest, if you ask me that question, or anybody asked me that, did I imagine that this would happen for a project where I'll get this kind of love and appreciation? I did not know that, but I knew that if I do it well as an artist, I know for a character, and it would definitely be known to people that there is a possibility on Indian television that you break some myths and you break the way you act. That's what was everybody's motive. I think where has a connection, and Shaurya and Anokhi has a connection as a show, is because it's very real. It touches topics which are relevant in this day and age, whether to work in a certain way or to be inspired to be a better person. So I think it's a responsibility, and if you do it well, I think किसी ना किसी को, मैं बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे ईमेल अभी भी आते हैं कि how it's changed their life, how it got them out of depression, how they felt a light of hope कि अगर ऐसा अनोखी कर सकती है या शौर्य कर सकता है तो हम जिंदगी में क्यों सकते हैं. For me, that was something that was a big responsibility, and at the same time, to see it flourish like this, I had no idea. I knew that we had a winner, because जब आप शूट कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है कि कितने पानी में हुआ, कि क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं और कैसा उसको लिया जाएगा और उसको समझा जाएगा. So I think these little things really help. फैंस होते हैं, उनका प्यार होता है हर प्रोजेक्ट को लेके, दे अप्रिशिएट यू, उनका एक अलग अलग तरीका होता है, बट कोई एक ऐसा फैन जिसने आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कर दिया, ऐसा कोई मोमेंट विच यू कैन टेल अस? अलग करते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं, चाहे वो उनको लगता है कि हमारे नाम की कोई डोनेशन करनी हो, किसी को सपोर्ट करना हो, to support a good cause, because I see to it that I support some cause or the other, because ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है, ऐसा इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है it's just, अगर आप किसी की मदद कर सको, why not? I always try lending a hand.
why not? That's the least as a human you can do. Then I remember the fans who what they did is that Shaurya Anoki के लिए उन्होंने they named a star after the artist, in the constellation. So I think that was very very unique. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था. I know that you can buy land on the moon, maybe Mars, or you can do all of this, but to actually go ahead and do that and name a star after the people, the actors that you fondly remember, I think that was really touching. That was another thing. Talking about your movie, your Thursday is a crime thriller, and these days हम लोग हर platform पे crime thriller काफी कुछ ऐसे content देख रहे हैं. But what made you say yes for this one, and what sets this apart? Honestly, I asked, ये अलग क्या है इसमें, अलग क्या है इसमें. जैसे अगर आप मेरा पूरी ट्रेजेक्टरी भी देख लीजिए, मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ, अगर उसमें कुछ ना भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर स्कोप हो कुछ अलग करने का, तो मैं एज अ परफॉर्मर करने की कोशिश करता हूँ. बट टू बी ऑनेस्ट, ये फिल्म अलग इसलिए है क्योंकि इट टचेस अ टॉपिक जो जानते हैं. आई कांट रियली रिवील इट बिकॉज़ दैट्स द मेन प्लॉट, बट इट टचेस अ टॉपिक एंड दैट काइंड ऑफ अ थ्रिल. बिकॉज़ क्या है ना कि थ्रिलर के अंदर आपको the audience always has a knack to either you will there are two things that happen when you watch a thriller. Either you go with the flow and you judge कि अच्छा आगे ये होने वाला है, और वो होता है तो आपको अच्छा लगता है और शायद कभी कभी प्रिडिक्टेबल लगता है. और दूसरा होता है कि आपको लगता है ऐसा होने वाला है मगर रीजन कुछ और होता है या कुछ और चीज होती है. तो ये दोनों चीजें ही जनरली अट्रैक्ट करती हैं. तो in this feature film, I found it very very surprising at every turn, चाहे वो इंटरवल हो या क्लाइमैक्स हो. तो मुझे वो रोलर कोस्टर राइड कहते हैं ना जो थ्रिलर में होती है, वो बहुत पसंद है. तो आई थिंक अगर आप वैसे काइंड ऑफ थ्रिलर्स देखना चाहते हैं तो दिस इज द फिल्म फॉर यू. And any of your favorite crime thriller series or movies, or recently if you're watching anything? क्राइम थ्रिलर तो देखिए मैं वैसे देखता हूँ, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्राइम थ्रिलर्स दैट आई हैव सीन इज गॉन गर्ल. मुझे बहुत पसंद है. फिर जैसे जॉनी गद्दार हुए, वैसे काइंड ऑफ फिल्म्स बहुत पसंद है. रियल लाइफ इंस्पायर्ड जैसे स्पेशली छवि थी, वैसी फिल्में मुझे पसंद. पिंक उन्हें पसंद है. और अगर आउट एंड आउट क्राइम थ्रिलर्स की बात करें तो अभी जैसे सीरीज काफी हैं. जैसे आई रियली लाइक which is that one, इसका नाम क्या है, क्या the guy plays a professor, Money Heist. Sorry, it's not at the top of my head. Money Heist I really liked. So ये सारी ऐसी फिल्म्स मुझे या सीरीज काफी पसंद होती है, उसमें हमेशा सरप्राइज एलिमेंट रहता है. तो these kind of crime thrillers I really like. Okay, tell me something about your character and also experience working with Yami and the full cast and the team. My experience was very good, yeah. It was good, it was difficult. I remember that कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बहुत सारे डिलेज हो गए थे, और मैं ये फिल्म खत्म करना चाह रहा था शौर्य अनोखी के दौरान ही, थोड़ा टाइम निकाल के. तो वो नहीं हो पाया because in a way it was a good thing that I could finish शौर्य अनोखी and then jump into the major portion of the film. बिकॉज एक तो लॉकडाउन हो गया और ऊपर से हमारी स्टोरी में बच्चे भी हैं, तो उनकी देखभाल करना, उनकी सेफ्टी रखना. इनफैक्ट उनका सेट भी इतने टाइम से खड़ा हुआ था तो मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि कोविड कब खत्म होगा, क्या होगा उसका, व्हेन विल यू रिज्यूम अ नॉर्मल शूटिंग. तो वो भी सारी चीजें थी. प्लस फिर मुझे कोविड हो गया तो सब कुछ टॉपसी टॉपी हो गया. ना मैं टीवी को टाइम दे पाया, ना फिल्म को दे पाया. थोड़ा बहुत मैं रूम में बैठ के अपना टीवी का शूट करता है, डबिंग करता, क्योंकि टीवी में थोड़ी वो लेवरेज आप ले सकते हैं.
For the feature film, really, you have to really don a different role. Like, as in, you have to really be there in that situation and out of that Shaurya's role. So I think वो बहुत बड़ा challenge था, and but everyone was very supportive. It's one of the best teams I've worked with in a feature film. तो ब्लू मंकी हो जाए, RSVP हो जाए, बहुत बहुत अपने आर्टिस्ट की कदर करते हैं. मैंने इनफैक्ट अभी हाल ही में जब डबिंग खत्म किया, was so emotional that I had to thank them from the bottom of my heart for taking care of an artist, his requirements. His requirements वैसे कुछ खास नहीं होती है, मगर क्या है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल जाए और लोग दोस्तों की तरह काम करें तो बहुत आसानी से बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं. लाइक आई रिमेम्बर, मैं डायरेक्टर के साथ एक टॉपिक के ऊपर मैं बस बार बार डिबेट कर रहा था कि नहीं मैं बट द गुड पार्ट इज दैट Behzad Khambata was the director. He has a clarity of thought. क्योंकि क्या होता है कि सेट पे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं जो आप स्क्रिप्ट पे लिखते हैं. इवेंचुअली आपकी सिचुएशंस, आपकी लोकेशंस, आपके परफॉर्मेंसेस, बहुत सारी चीजें बदल देती हैं. The clarity of thought he had, and he's like, I said, I was giving a take and I was like, उसको वहां दिख रहा था तो नहीं, एक और करते हैं. तो फिर मैंने एक और किया. बोले नहीं यार करण, tell me when you're ready, tell me when you're ready, we'll roll when you're ready. I said I'm ready. तो वो सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे कैरेक्टर के लिए और फिल्म को आगे लेके जाने के लिए, दूसरे कैरेक्टर के लिए, नैना के कैरेक्टर के लिए, यामी के कैरेक्टर के लिए. So he just said, you know what? When I get the take, I will tell you, or I will not say anything at all, and you'll know you've done it. And that trust that he had in me, I said, नहीं यार boss, I have to up my performance for him because the kind of trust he has. और अतुल सर के साथ मेरा परफॉर्मेंस था. He was also very patient because we're trying to be as real and a little different in our approach. So जब वो scene निकल के आया, there was like a moment of silence on set, and that was enough for me to get appreciated because I knew my director had what he was wanting. So वो experiences as an artist, it's really you take it with you. Nervous only because कि मुझे इतना prep का time नहीं मिला था. और मैं जनरली जाता हूँ तो मुझे रिहर्सल, प्रेप्स और रीडिंग्स और ये सारी चीजों में वक्त मिलता है. बट माय डायरेक्ट to it, I think the comfort which was given by the co-actors, whether it's Yami, Atul sir, or anybody else, and the director, I think that's where magic happens, really. As someone who has worked across all the platforms, do you as an actor see any difference in space? Yeah. I know every actor gets put this question. Obviously, it's the medium is same. अगर आपको जब मुझे गोवा में कोविड हुआ था तो there were these scenes which were really important for me to shoot and show my face and my emotions for that whole entire story to come forward. जब मेरी किडनैपिंग हो जाती है तो मुझे बांध के रखा जाता है और मैं वहाँ रेत पे मैं एक ही इंसान का नाम लिखता हूँ जो मेरे से सबसे करीब है. वो अनोखी का नाम होता है कि I don't write help, I don't write anything, but I just write Anokhi. Like, it is a very metaphorical thing which needed to be there, and I wanted to do it personally because अगर मेरा चेहरा, मेरी आंखें नहीं होंगी, although मेरे expression सारे covered थे, मेरा face covered था, पट्टी लगी हुई थी, and I was fallen on the ground. But वो आंखों से अगर आप वो सीन नहीं करते और उंगलियों से वो नाम नहीं लिखते और वो इमोशन नहीं लिखते कि in the time of utter chaos and destruction, आप उसी को याद रखते हैं जो आपसे सबसे करीब रहता है. तो वो बहुत जरूरी था. तो जब वो हुआ तो मैं खुद बहुत थका हुआ था because unfortunately COVID कुछ लोगों के लिए इजी नहीं होता है. तो मगर मुझे करना था because I said कि अगर मैं ये नहीं करूँगा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं इस बीमारी को फाइट भी नहीं कर पाऊंगा. So it is my
it was my fight against a lot of things, because कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि um, um, you know मैं एक ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ who fights for what is right and fights against injustice. So and a fight he has in him, तो वो कहीं ना है तो वो बहुत है, बट वो फोन पे शूट किया था क्योंकि मैं आइसोलेशन में था, अपने आईफोन से शूट किया था उसे। अब भुवन भाम को देख लीजिए, भुवन भाम का आप इट्स वन कैरेक्टर प्लेइंग सो मेनी डिफरेंट रोल्स, और इनिशियली तो मैं उनकी वीडियोस देखता था तो ऐसे सेल्फी मोड को ऑन करके हाथ पकड़ के without any lighting, without any much of makeup or team or crew. तो I think ये medium diverse है, मगर in the end you're saying one thing, you're saying one story which has a beginning, it has a middle and it has an end. तो अगर आप वो अच्छी तरह से कर रहे हैं तो विजुअली आप कैसे भी उसको अपील करें उससे फर्क नहीं पड़ता है। Again, we are coming back to that phase, cases are increasing every day. And lockdown की possibility का कुछ पता नहीं है कब हो जाए. So as an actor, does it matter to you if your movie is hitting on OTT and not in the theaters? I know this one is releasing already on Disney Plus, Hotstar, but as an actor, it's a normal generic question. अगर cases की वजह से, lockdown की वजह से अगर कोई movie आपकी theaters पे release होने वाली हो और OTT पे आए, तो does it matter to you? For me, it doesn't really matter. To me, ये न्यूज जैसे आप लोगों को पहले पता लग जाती है, मुझे तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है क्योंकि मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये स्टिल इन टॉक एंड मेरा वो काम ही नहीं है। मेरा काम था एक्टिंग करना, ये देखना कि जितने लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट दिया है मैं उनको निराश ना कर पाऊँ, तो मेरा काम वहां तक सीमित रहता है। दूसरी बात अगर करें तो OTT पे आए, वेल एंड गुड, आधी से ज्यादा पिक्चरें आ रही हैं, और उससे मुझे लगता है एक अच्छी बात ये है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी पता लग जाता है कि अगर OTT पे वो नॉइज क्रिएट करे तो दैट मीन्स अ गुड फिल्म। तो मेरी आशा यही रहेगी, चाहे वो थिएटर में आए या OTT पे आए, it should make some noise because this is the kind of a story that needs to be told. एंड इवेंचुअली आजकल सब कुछ छोटी चीज है, अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे भी आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं पहली तरह नहीं कर रहा। आई डोंट हैव टू कम टू योर हाउस और टू योर स्टूडियो टू डू एन इंटरव्यू, और यू डोंट हैव टू कम ओवर एनीमोर, इट्स जस्ट दैट सो एक्सेसिबल। एंड कहीं ना कहीं यह है कि और इसमें चाहे वो OTT के लिए बनी हो या किसी भी चीज के लिए बनी हो, इट हैज नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज। You will enjoy it irrespective, and medium अच्छा काम किया और अप्रिशिएट किया, बस वो ज्यादा से ज्यादा यही इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। What next? Any exciting news for the fans? If you can reveal something, anything in pipeline. See, every day there is a new development. Some work out, some don't work out, जो हमेशा चलता ही रहता है। टीवी शो अभी तक कुछ ऑफर नहीं हुआ है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम ओपन टू टेलीविजन, आई एम ओपन टू OTT, आई एम ओपन टू फीचर फिल्म। फिलहाल मेरी कंसंट्रेशन फीचर फिल्म जो अभी बन के तैयार है उसकी रिलीज पे है, ऑफ कोर्स। दूसरा मेरा एक OTT का वेब सीरीज है जो सुनील शेट्टी सर के साथ कर रहा हूँ मैं। सुनील शेट्टी सर, राहुल देव सर, ईशा गुप्ता इज देयर, बरखा बिष्ट is there. Okay, and lastly, anything you'd like to say to the fans, to the viewers on India Forums who have been always loving you, supporting you? Yes, I think India Forums को मुझसे ज्यादा I think वो ही फॉलो करने लगे हैं अभी, क्योंकि आप भी बड़े रेगुलर हैं। कुछ ना कुछ हम एज एन आर्टिस्ट मुझे सपोर्ट करते हैं, शो को सपोर्ट किया आप लोगों ने, तो इट्स आई फील कहीं ना कहीं दैट्स वेयर गुड जर्नलिज्म कम्स इन, एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो आप लोग लेके आते हैं तो अच्छा लगता है। तो और आई थिंक फैंस भी समझदार हैं, वो भी जानते हैं कि
कैसे आर्टिकल्स आने चाहिए और किस किस को पुश करना चाहिए, तो वो भी मुझे लगता है रिक्वेस्ट देते होंगे। तो फैंस की जितनी तारीफ करूं मैं, मेरे लिए कम है। यू डोंट हैव टू सी, देखिए मैं भी बहुत मैं भी फैन रह चुका हूँ बहुत सारी चीज़ों का, लोगों का रियल लाइफ में। जैसे मेरे पिताजी हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ फॉर ऑब्वियस रीजन। अमन जी के परफॉर्मेंसेज, उनके सिनेमा का मैं फैन हूँ। बहुत सारे डायरेक्टर्स का फैन हूँ मैं। हाल ही में मैंने लियोनार्डो डिकैप्रियो की पिक्चर देखी। आई रियली फील अ कनेक्ट विद हिम बिकॉज़ एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज वेरी सिमिलर causes that he approaches and the kind of film he does. तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी को इतना फॉलो करूं। मैं करता हूं just to see what they're doing and everything, but पर्सनली ये लोग जो फॉलो करते हैं, इट इज अनपैरेलल। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। तो जब मैंने पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था और खुशी भी होती थी कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना अपना मानते हैं कि they treat you like a buddy or a friend. So बहुत ही एक वंडरफुल एक्सपीरियंस हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि इनका ख्याल रखा जाए। तो आई थिंक ख्याल की अगर हम बात करें तो हम अच्छा काम ही कर सकते हैं इनके लिए, ताकि इनको और खुशी हो कि they did not take a wrong decision in following you. So thank you guys for that kind of love, and I hope I don't disappoint you with any kind of work that I do. Thank you so much for giving your time, and I wish you all the luck for all your projects. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.